Hello dear aspirants, I am Pratiksha Chauhan. Welcome to Arpita Sharma Classes, a platform where you get quality classes free of cost, covering important subjects from the perspective of UPSC. We are going to cover art and culture topic, that is Indian art forms, Indian paintings, classical dance forms, folk dances, classical music, puppetry and martial arts. Before we start, here is a small announcement for all of you. Do you have a long term vision to achieve success? An Academy brings you new batches starting from 19th May 2021 to aid your exam preparation and help you with your journey. Use referral code ARPITA10 and get 10% off. Subscribe now. Click on the link below to subscribe. Here is the list of batches that we are launching on Unacademy Plus for all of you. Top Unacademy educators will cover the important concepts for UPSC CSE prelims, and these courses will be helpful for aspirants preparing for UPSC CSE exams. UPSC CSE aspirants at any stage of their preparation will be benefited from these courses. The courses will be covered in bilingual Hindi and English. Do not miss this opportunity. Enroll now. Today we will discuss the topic from art and culture, that is literature. Under that we will discuss Asian Indian literature, classical Sanskrit literature, women poets of Bhakti movement and modern Indian literature. We will discuss all these points in briefly. So let us begin with this topic. Now first we should understand what is literature. Okay, so literature what defines from Latin word, okay, that is literatura, which means writing formed with letters, means the written letters is that is formed with letters, the word which is formed with letters. So it is classified into two parts, that is fiction and non-fiction. So if we further classify, if we further subdivide it, then it is also divided into two parts, that is poetry and prose. So most popular literature is taken from Greek Roman times, that has been epic. Okay, now comes ancient literature, Asian Indian literature. It is the literature which is in Prakrit language, okay, which consists of realism, mean real, and moral values, okay, real plus moral values in includes. So it has no religious interference or association, okay. So which is the most popular Asian period? That is Vedas. Now we will discuss under ancient Indian literature. The first part is Vedas. अब एशियन इंडियन लिटरेचर के अंदर जो पहला पार्ट आता है वो वेदास होता है, जो कि सिग्निफाई करता है नॉलेज को, मतलब दैट प्रोवाइड्स ह्यूमन नॉलेज टू कंडक्ट द एंटायर लाइफ ऑन अर्थ एंड बियॉन्ड, मीन्स ह्यूमन जो है या फिर जो इंसान है वो नॉलेज के साथ जितनी ज़्यादा नॉलेज गेन होगी वो अपनी लाइफ उतने अच्छे से दुनिया में या फिर अर्थ पर जी सकते हैं, ओके, दे कैन कंडक्ट देयर एंटायर लाइफ ऑन अर्थ. सो this is written in highly stylish poetic style, okay. So it is full of symbol and myths. When it is compiled 1500 BC to 1000 BC. So it is considered as more sacred, means more religious, okay. So it consists divine revelations. So it preach Vasudev Kutumbakam, okay, means the Vedas also has a word that is named as Vasudev Kutumbakam. So it has divided into four parts, that is Rig Veda, Yajur Veda, Samaveda and Atharveda. So it is written by rishis, means it include cosmic mysteries, and it is written in the form of Sanskrit poetry, means the language is Sanskrit here, okay. So it gives prominence to yagna, means it is more involved towards sacrifice. So each Veda accompany what? Brahmanas, Upanishads and Aranyakas, okay, Aranyakas.
नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन ऑल द वेदास. सो फर्स्ट वेदा कौन सा है? ऋग्वेदा. सो ये जो वेदा है ऋग्वेदा, इसको ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग वेदा कहा जाता है. इसमें जो संस्कृत हिम्स हैं वो 1028 हैं. ओके, सो ये एक फर्स्ट एक्सटेंसिव कंपोजिशन है जो कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में है. ओके, ये कब कंपाइल हुई? 1200 BC टू 900 BC. ये जो है मेनली फोकस किस पे करता है? वर्ल्डली प्रॉस्पेरिटी, मतलब जो दुनिया की प्रॉस्पेरिटी है, और नेचुरल ब्यूटी पर. सो इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन 10 बुक्स. जो 10 बुक्स है वो उसको क्या कहा जाता है? मंडलास. दैट इज नोन एज मंडलास. सो इट कंप्राइजेस ऑफ सेवरल सूक्तास और हिम्स. सो this books, 10 books, which is known as mandalas, it consists of several suktas, means hymns also they are consist of. So it mean usually for sacrificial purposes. This books, this includes, the main motto of this book is to tell the sacrifice purposes. So what were the themes? Like life, death, creation, sacrifice, and seeking godly pleasure or soma. So these are some of the themes. So hymns are dedicated to several deities. So जो hymns हैं वो काफ़ी several deities means several gods पे भी हैं, वो डेडिकेट होती हैं. जैसे मेन जो चीफ डेटी हैं वो इंद्र कहे जाते हैं. अब प्रोमिनेंट गॉड कौन कौन से हैं? जैसे अग्नि, वरुणा, रुद्र, आदित्य, वायु एंड अश्वनी ट्विंस. सो जो हिम्स फॉर फीमेल गॉडेस कौन कौन सी हैं? जैसे उषा, विच इज नोन एज गॉडेस ऑफ डॉन, पृथ्वी गॉडेस ऑफ अर्थ, वस्क दैट इज गॉडेस ऑफ स्पीच. अब नेक्स्ट वेदा कौन सा है? अथर्ववेदा. इसे ब्रह्मवेदा भी कहा जाता है. ये जो है दो ऋषियों पे आधारित है. दैट इज एट्रीब्यूटेड टू टू ऋषिज, दैट इज अथर्व एंड अंगिरा. सो इट कैन बी UPSC क्वेश्चन दैट which two rishi is associated with Atharvaveda, then you have to mark Atharva and Angira. So association of two rishis is called Atharva Girsa. Okay, Atharva Girsa. So this Veda is concerned with, it includes peace and prosperity. ये जो वेदा है वो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी पे ज्यादा फोकस करता है. सो ये जो कवर क्या क्या करता है ये वेदा? दैट इंक्लूड्स मैन्स डेली लाइफ एंड फोकसेस ऑन ट्रीटमेंट ऑफ सेवरल एलिमेंट्स, मींस सेवरल डिजीजेस को भी ये ट्रीट करता है. सो ये जो अथर्ववेदा है इसने 99 डिजीजेस के ट्रीटमेंट को बताया है. दैट हैज गिवन द 99 डिजीजेस ट्रीटमेंट. सो इसके टू मेजर शाखास कौन सी हैं? ये दो दो पार्ट्स में डिवाइड है ये वेदा. दैट इज पैपलादा एंड सौनकिया. ओके, पैपलादा एंड सौनकिया. सो ये जो वेदा है वो ये भी डील करता है, और भी चीजों से डील करता है रेदर देन मैंस डेली लाइफ या फिर किसी भी डिजीज को करने से के अलावा ये और भी चीजें करता है. जैसे हीलिंग को करता है डील, ब्लैक एंड वाइट मैजिक पे भी होता है इसका काम, और चेंजेस जो हो रहे हैं यूनिवर्स में उन पे भी ये डील करता है. जो एवरीडे, जो रोज की मुसीबतें या फिर एवरीडे प्रॉब्लम्स हो रही हैं हाउस होल्ड लाइफ में, ये जो वेदा है ये उन पर भी फोकस करता है. नाउ कम्स द यजुर्वेदा. यजुस, जो ये यजुर है, यजुर्वेदा जो इसका वर्ड यजुर है, दैट यजुस वर्ड सिग्निफाइज सैक्रिफाइस. जो यजुस वर्ड है वो क्या मतलब बताता है? मतलब सैक्रिफाइस करना. इट फोकसेस ऑन राइट्स एंड मंत्रास. ये किस किस चीज पे फोकस करता है? राइट्स पे और मंत्रास पे, जो कि एक डिफरेंट टाइप के सैक्रिफाइसेस दिए गए हैं वैदिक टाइम में. सो इसके दो मेजर रिलीजन्स या फिर संहिता हैं यजुर्वेदा के. जैसे शुक्ला, शुक्ला मीन्स व्हाइट और प्योर, and the next is Krishna means black or dark. So these samhitas are called, so ये दो samhita हैं शुक्ला and Krishna. So these two samhitas are also known as Vajanshevi samhita and Taittiriya samhita.
Okay, that is Vajansheyi Samhita and Taittiriya Samhita. So it is a ritual Veda, means it acts like a guidebook for rishis and priests to conduct a sacrificial rituals. Now next is Samaveda. जो ये समावेदा है दैट इज नेम्ड आफ्टर समान. ओके, दैट इज मेलोडी. ये जो समा है, समावेदा, ये किसके नाम पे रखा गया है? समान, दैट इज मेलोडी. सो मीन्स मेलोडी और अ सॉन्ग. ओके, सो इसमें कितने हिम्स हैं? 1875, जिसमें से 75 है दैट आर ओरिजिनल, और जो कि बचे हुए दैट आर रेस्ट वाज टेकन फ्रॉम साकला ब्रांच ऑफ ऋग्वेदा. इसमें से जो 1875 हिम्स हैं दैट आर 75 आर ओरिजिनल एंड द रेस्ट वो टेकन फ्रॉम साकला branch of Rigveda. So consist of this Veda consists of hymns and detached verses. And how many ragas is consist? That is 16,000 raga, means musical notes is consist. Okay, now this book is also known as Book of Chants. Okay, so it tells about the development of Indian music in Vedic period. Okay, so this is known as वेदांगास. तो इसमें एक ब्रांच है, जो समावेदा में एक ब्रांच है जिसको कहा जाता है वेदांग्स, जो कि एक सप्लीमेंट है ओरिजिनल वेदा का, जो कि कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करता है, जैसे शिक्षा मीन्स एजुकेशन, निरुक्ता मीन्स एटिमोलॉजी और द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, जहां से वर्ड्स ओरिजिन हुए हैं, जैसे चंदा दैट इज मैट्रिक्स इन संस्कृत ग्रामर. नाउ द नेक्स्ट इज ज्योतिषा. Okay, means astronomy. व्याकरण that is grammar. Okay, so ये जो वेदा में जो टॉपिक कंसंट्रेट किए गए हैं वो ये सब हैं. Okay, so जो काफी सेवरल ऑथर्स भी ने इस सब्जेक्ट को पिक किया. Okay, and this is called as सूत्र. Like पानी अष्टाध्यायी means पानी अष्टाध्यायी means जिसमें जो टेक्स्ट है जो कि डिफाइन करता है रूल्स ऑफ संस्कृत ग्रामर को, द टेक्स्ट दैट डिफाइंस द रूल्स ऑफ संस्कृत ग्रामर. नाउ नेक्स्ट इज ब्राह्मणास. ओके, जो ये नेक्स्ट है, पहले हमने वेदास की सारी बात की, कौन कौन से वेदास थे उनके बारे में डिस्कस किया. अब हम डिस्कस करते हैं ब्राह्मणास. ओके, ये एक हिंदू श्रुति मीन्स रिवील नॉलेज है, मतलब नॉलेज लिटरेचर देता है ये, that discuss about the knowledge literature. So each Veda has a Brahmana attached to it, means जो वेदास हैं उसमें एक ब्राह्मणा अटैच भी है. Okay, so means it is a collection of text with commentaries on the particular Veda. means देखो अगर नोट्स जैसे होते हैं ना बुक्स में, वैसे ही वेदास में एक ब्राह्मणा अटैच्ड है. Okay, so it is a mixture of legends, facts, philosophy, detailed explanation of Vedic rituals. It consists of instruction that how should you conduct a ritual and that how to conduct with the signs of sacrifice. So it explains the symbolic importance of sacred words that is used in rituals. So when it is compiled 900 to 700 BC. So each text is attached to Vedas. So what it describes? It describes rituals and sacrifices in Vedas, which is included in Vedas. So this compilation of ritualistic information is about birth and death cycle. So holy and learned man, जो कि होलिस्टिक मैन मतलब जो कि पूजा करने वाले, जो कि प्रेयर करने वाले या फिर जो नॉलेजेबल मैन है, उन्हें मुनीस कहा गया है. जैसे जो कि मुनीस कहाँ रहते हैं? दे लिव्ड इन द फॉरेस्ट एंड दे हैव बीन टॉट देयर ओनली, वो वहीं पढ़े हैं. ओके, सो अब जैसे एक आप इमेज में दे सकते हैं, जैसे ऋग्वेदा है, उसमें कौन सा ब्राह्मणा यूज हुआ है? दैट इज ऐतरेय कौशिकी. ओके, अब अथर्ववेदा में कौन सा है? गोपाथा. ओके, नवसम वेदा में कौन सा है? जैमिनिया. ओके, अब यजुर्वेदा में कौन सा है? तैत्तिरीय ब्राह्मणा. ओके, अब यजुर्वेदा में एक और ब्राह्मणा है दैट इज सथापथा. ओके,
सो ये कुछ ब्राह्मणा है, यू कैन ऑल्सो लर्न बिकॉज यूपीएससी कैन आस्क क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस ऑल्सो। अब हमने पहले ब्राह्मणास डिस्कस कर लिया, अब एशियन इंडियन लिटरेचर के अंतर्गत या फिर अंडर में आर्यनकास भी आते हैं, जो कि टेक्स्ट जो कि अटैच है वेदास से, द टेक्स्ट विच आर अटैच टू वेदास। सो इट डिस्क्राइब रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस that is involved in Vedas. The important point is of this Arankyasis, they are involved in rituals and sacrifices that is included in Vedas, जो कि Vedas में included हैं, और ये इसका कंपाइलेशन किया भी है, जैसे बर्थ एंड डेथ साइकिल जो कि ब्राह्मणास में भी डिस्क्राइब किया जाता है, और होली एंड लर्न मैन भी इसमें, जैसे जो कि पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं जो कि पूजा पाठ करते हैं उन्हें मुनीस कहा गया है, जैसे ब्राह्मणास में भी इसको डिस्कस किया था। अब ऋग्वेदा में कौन सा रंग किया है, जैसे ऐतरेय। अब समवेदा में कैसा है, जैमिनिया उपनिषद ब्राह्मण। ओके, सो यजुर्वेदा में कौन सा है, तैत्तिरीय अरण्यक। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज उपनिषद्स। So the word Upanishad, so it is divided into parts. If you divide the whole word into parts, means आप तोड़ते हैं शब्दों को, इसके उपनिषद को, तो हर एक शब्द की, हर एक वर्ड की अलग मीनिंग है। जैसे यू, उसका मतलब है एट, PA मीन्स फुट, NI मीन्स डाउन, SHAD का मतलब क्या है, टू सिट, मतलब बैठना, टू सिट डाउन नियर द टीचर। उपनिषद का मतलब होल अगर हम लोग ले, टू सिट डाउन नियर मतलब गुरु के सामने बैठना, जैसे टू सिट डाउन नियर द टीचर। अब मोर देन 200 इज नोन एज उपनिषद। इट इज गुरु शिष्य परंपरा। उपनिषद को क्या नाम दिया गया है, इसमें क्या डिफाइन है, गुरु शिष्य परंपरा। ये जो है संस्कृत में रिटन है, इट इज रिटन इन संस्कृत विच गिव्स एन अकाउंट ऑफ वेदास, its monastic and mystical terms. So it is a generally last part of Vedas. It is also called as Vedanta, means to end, means अंत होना वेदा का, ठीक है, means Vedanta. So ये बताता है they have the truth about human life and direct towards human salvation or moksha, means जो it tells about the truth of human life and tells about the moksha. Okay, so it mentions abstract and philosophical problems that is faced by mankind or human being, like origin of universe, कैसे हुआ यूनिवर्स का origin, डेथ साइकिल कैसे थी, मटेरियल क्या क्या थे, स्पिरिचुअल क्वेस्ट ऑफ मैन क्या थे। अब जो 200 उपनिषद हैं उसमें से 108 उपनिषद को is known as 108 Upanishads is known as Muktika canon. So it is an important canon because there are 108 beads on Hindu रोजरी और माला। मतलब जो बीट्स आप होते हैं ना, लोग देखे होंगे अपने ग्रैंड पेरेंट्स को जपते हुए, तो उसमें जो बीट्स होते हैं वो इसको कैनन को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन हिंदू रोजरी और माला में। ओके, सो इट टीचिंग इन उपनिषद इज फाउंडिंग रिचुअल्स ऑफ हिंदुइज्म। जो उपनिषद हैं, जो टीचिंग है उपनिषद की, वो रिचुअल्स जो हिंदुइज्म है उसके फाउंडर है उसका। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन उपनिषद एंड अरण्यकास। जो उपनिषद है दैट इज जनाकांदा, मीन्स नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी सेक्शन। ओके, आर्यन का क्या है, कर्माकांदा, मतलब रिचुअलिस्टिक एक्शन या फिर सैक्रिफाइस एक्शन। आप एशियन इंडियन लिटरेचर के एग्जाम्पल्स हैं, लाइक फर्स्ट इज रामायण। सो इट इज रिटन बाय वाल्मीकि, दैट इज आदि कवि। हु इज द आदि कवि मीन्स he is the one of the first among us poets. So Ramayana is called Adi Kavya or the first among us poetry. Okay, so ये कब compiled हुई, 1500 BC, but ये जो डेट है वो काफी डिबेटेबल है, हर जगह अलग अलग दी गई है। So it tells the story, ये किसके बारे में स्टोरी बताता है, श्री राम के बारे में, who is an ideal man and
who instructed to achieve the fourfold objectives, that is fourfold objectives को क्या कहा गया है, पुरुषार्थ ऑफ मैनकाइंड। अब फोरफोल्ड ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, धर्मा जिसमें रिलीजन या फिर राइटिशनेस है, मतलब किस तरह राइट आपके होते हैं या फिर आप अपनी लाइफ कैसे सही तरीके से जीते हैं, या फिर रिलीजन, ओके, जो धर्म है आपका, ओके। अब अर्थ आता है, दैट इज अचीवमेंट इन द वर्ल्डली स्फीयर, आपने क्या क्या अचीव किया है पूरे समाज में या फिर पूरे विश्व में। सो अब कामा क्या है, दैट इज फुलफिलिंग वर्ल्डली डिजायर्स, जो आपके खुद के डिजायर्स हैं, जो लोगों के डिजायर्स हैं, आप उसे कैसे फुलफिल कर रहे हैं। अब मोक्ष मतलब लिबरेशन फ्रॉम दीज डिजायर्स, मतलब जो मोक्ष है मतलब आपके जो डिजायर्स हैं उन सबको छोड़ देना, बस एक पीसफुल जिंदगी जीना। अब इसमें जो है 24,000 वर्सेस हैं, सो इट इज डिवाइडेड इनटू 7 बुक्स, जो 7 बुक्स में डिवाइडेड है उसे कहा गया है कांदास। The verses is like 24,000 and divided into 7 books. That 7 books is known as Khandas. Okay. So it represents the detail of war between whom? Lord Rama and Demon King Ravan. ये represent करता है युद्ध के बीच का, जैसे किसके किसके बीच हुआ था युद्ध, that is Lord Ram और रावण के बीच। और ये क्या इसका मेन जो किस लिए हुआ था, आफ्टर किडनैपिंग ऑफ रामास वाइफ सीता, मतलब जो सीता का अपहरण कर लिया था रावण ने। इसमें मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से थे, हनुमान, लक्ष्मण, विभीषण एसेट्रा। सो दीज वर इंस्ट्रूमेंटल इन फाइट इन लंकन, ओके। सो जिसमें राम हैज विन and brought back his wife. So it is main motto of the Ramayana is, the main moral of the Ramayana is victory of good over evil, मतलब सच्चाई की जीत होना या अच्छाई की जीत होना। अब नेक्स्ट इज महाभारत, ये किसने लिखी थी, महर्षि व्यास। इसमें कितने वर्सेस है, 1 लाख वर्सेस एंड 1.8 मिलियन वर्ड्स, जिसमें से जो 10 टाइम्स लॉन्गर है किससे, इलियाद एंड ओडिसी कंबाइंड है। ये जो महाभारत है उसमें जो वर्ड्स है वो इलियाद और ओडिसी कंबाइंड है, मतलब जो लैंग्वेज हुई है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें 4 टाइम्स ऑफ रामायण, मतलब जो पहले उसमें 24,000 वर्सेस थे, बट महाभारत में 1 लाख वर्सेस है जो कि 4 टाइम्स ऑफ रामायण है। So it is divided into total 8 parvas means 18 chapters plus Hari Vamsat supplement. So Bhagavad Gita is also a part of Bhishma Parva of Mahabharata. So which is the largest chapter in Mahabharata is Shanti Parva. So the next topic in Asian Indian literature is Puranas. So there is one Mahapurana, 17 Mukhya Purana, that is major Puranas, and 18 are Upa Puranas, that is minor Puranas. So what is the number of verses here, that is 4 lakh verses, okay, in Puranas. So the literature of Puranas is very vast, मतलब काफी बड़ी है और इसमें काफी different टाइप के टॉपिक्स हैं, बट दैट आर नॉट लिमिटेड टू, ये जो टॉपिक्स है केवल इन्हीं सब में लिमिटेड नहीं है, जैसे कॉस्मोलॉजी से ही लिमिटेड नहीं है, जीनोलॉजी, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, गॉड एंड गॉडेसेस, ग्रामर, डेमी गॉड्स, हीरोज एंड सेजेस, इन्हीं सब टॉपिक से केवल लिमिटेड नहीं है, और भी कई अलग तरह के या फिर डाइवर्सिफाइड टॉपिक्स हैं। नाउ पुराणास आर कंसीडर्ड स्मृति टेक्स्ट। इसमें कौन सा टेक्स्ट यूज हुआ है, दैट इज स्मृति टेक्स्ट, मीन्स विच इज इजली रिमेंबर, जो काफी अच्छे से आप याद कर सकते हैं। सो स्मृति टेक्स्ट जो होता है उसके पास अथॉरिटी नहीं है श्रुति स्क्रिप्चर की, बट स्टिल हेल्ड इन इक्वल रिगार्ड, ओके। इसके पास स्मृति टेक्स्ट के पास श्रुति टेक्स्ट की या श्रुति स्क्रिप्चर की कोई अथॉरिटी नहीं है, बट इसे इक्वल माना जाता है श्रुति स्क्रिप्चर के, ओके। स्मृति टेक्स्ट इज इक्वल टू श्रुति स्क्रिप्चर। So the first version of Puranas कब कंपोज हुआ, 3rd to 10th century AD. So पंचतंत्र, that is पंचतंत्र किस लिए था, आप सबने भी सुना होगा या फिर पढ़ा भी होगा, जो कि एनिमल स्टोरीज पे है, किसके द्वारा लिखा गया था, विष्णु शर्मा। So it can be a UPSC question,
who has written Panchatantra? Then you have to take on the Vishnu Sharma. Now Hitopadesha, who has written Narayan Pandit. So ये किस लिए यूज होता है? नॉन ह्यूमन एंड एनिमल एलिमेंट्स के लिए. ओके, इसमें ये नॉन ह्यूमन एनिमल एलिमेंट्स इंक्लूड किए गए हैं. अब आता है उप पुराणास. ये काफी पॉपुलर पुराना है. ओके, दिस इज वेरी popular Puranas which give rise to a subgene. Okay, that is Upapurana. Okay, so it is also known as minor Puranas. So इसमें 19 minor Puranas है, लेकिन कई जगह लिखा हुआ है 18 minor Puranas. So अब इसमें जो है major subjects कौन कौन से हैं? Which are dissected by Sanskrit lexicographer, okay, from Gupta period. जो ये 19 पुरानास है उसमें 5 डिफरेंट सब्जेक्ट या मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो कि संस्कृत लेक्सिग्राफर में लिखे गए हैं. ये कब था? गुप्ता पीरियड में, जिसे अमर सिम्हा भी कहते हैं. अब ये 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? सार्गा मीन्स द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का कैसे क्रिएशन हुआ. दूसरा क्या है? प्रतिसार्गा, मतलब कैसे डिस्ट्रक्शन और रिक्रिएशन होता है, कैसे पीरियोडिक साइकिल होती है. व्हाट विल बी द पीरियोडिक साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड रिक्रिएशन. अब आता है मानवंतरा. दिस इज द पीरियड्स ऑफ मनु's लाइफ टाइम. ओके, द नेक्स्ट इज वंसा, दैट इज चंद्र एंड सूर्य. दिस टेल्स अबाउट द सोलर एंड लूनर डायनेस्टीज ऑफ गॉड्स एंड सेजेस. सो आफ्टरवर्ड इट इज वन Sanuchitra. This tells about dynastic histories of king. Now next is classic Sanskrit literature. Okay, पहले हमने बात कर ली एशियन इंडियन लिटरेचर की, अब हम बात करते हैं क्लासिक संस्कृत लिटरेचर की. जो संस्कृत लिटरेचर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट इज वैदिक एंड क्लासिक कैटेगरीज. सो महाभारत और रामायण जो है वो संस्कृत काव्य है. ओके, मीन्स एक एपिक पोएट्री है, और नाटक है जैसे क्लासिकल ड्रामा है. सो इट कैन बी ट्रीटेटाइज ऑन मेडिसिन, स्टेट क्राफ्ट, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स. इन सब में ये भी इंक्लूड हो सकता है. तो संस्कृत लिटरेचर जो है वो बाउंड बाय रूल्स ऑफ ग्रामर गिवन इन पाणिनिस अष्टध्यायी. ओके, ये जो संस्कृत लिटरेचर है वो किससे बाउंड है? जो कि ग्रामर, जो रूल्स होते हैं ग्रामर के, जो कि किसमें दिए गए हैं? पाणिनिस अष्टध्यायी. नाउ नेक्स्ट इज संस्कृत ड्रामा. ओके, ये जो है काफी पॉपुलर जेनर है. ओके, ये काफी पॉपुलर जेनर है. ओके, जैसे रोमांटिक टेल्स होती हैं जो कि एक सोलो पर्पस होता है. इसमें एंटरटेन करना पब्लिक को या फिर रोक रंजना. ओके, मतलब पब्लिक को एंटरटेन करना सोलो पर्पस के लिए. ओके, एक सोल पर्पस होता है इनका. क्या मेन मोटो क्या होता है? कि पब्लिक को एंटरटेन करना. ओके, सो रूल्स इसमें रिगार्डिंग क्या होते हैं परफॉर्मेंस के, कि एक्टिंग कैसे होना चाहिए, जेस्चर कैसा है, स्टेज डायरेक्शन कैसा है, एक्टिंग कैसी है. सो ये इलस्ट्रेट कब हुआ? नाट्य शास्त्र बाय भारता. जो नाट्य शास्त्र थी जो भारता ने लिखी थी 1 BC to 1 AD में, इसमें ये सब डिफाइन है. अब क्लासिक संस्कृत लिटरेचर के कुछ ड्रामास भी हैं इस पीरियड के, जैसे कालिदासा. ये किसके बारे में है? मालविका मित्रा, जो कि एक लव स्टोरी है मालविका की, जो कि क्वीन की, जो रानी की दासी होती है. दैट इज शी इज अ मेडन ऑफ क्वीन. सो एंड अग्निमित्रा, मतलब जो पुष्यमित्रा शुंगा का बेटा, या हु इज द सन ऑफ पुष्यमित्रा शुंगा. ओके, सो नेक्स्ट इज विक्रमोर्वशिया. दिस इज द लव स्टोरी ऑफ विक्रम एंड उर्वशी. अब भी है ना शकुंतला. दिस इज अ रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला, मतलब ये स्टोरी जो है वो शकुंतला के ऊपर. अब आता है शूद्र का, जो कि है मृच्छकटिका, जो कि लिटिल क्ले कार्ड पर स्टोरी है. सो लव अफेयर ऑफ यंग ब्राह्मण शरुदत्ता विद अ वेल्थ कर्टिशियन. एक लव अफेयर किसका है? ये ब्राह्मण शरुदत्ता का. अब कौन सा है? विशाखा दत्ता. दिस इज अ मुद्रा रक्षा. ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है जो कि नरेट करता है
किसकी स्टोरी? चंद्रगुप्त मौर्य की। कैसे पावर उनकी थी, कैसे स्प्रेड हुई उनकी पावर इंडिया में। ओके, नेक्स्ट इज जेवी चंद्रगुप्तम, दिस इज अंडर विशाखा दत्ता। नाउ नेक्स्ट इज भवाभूति। ओके, दिस इज टेल्स अबाउट उत्तरा रामचरित्रम, मीन्स इट टेल्स अबाउट द लिटिल लाइफ ऑफ श्री राम, मतलब कैसे राम ने अपनी आखिरी लाइफ जी थी। ओके, लिटिल लाइफ के बारे में बताता है ये राम की। ये कब लिखा गया था? 700 AD में। अब नेक्स्ट ड्रामा कौन सा है? भाषा, जो कि स्वप्न सौदत्ता पे है, जो कि वश्वदत्ता के ड्रीम के बारे में बताता है। और पंचतंत्र और उरुभंगा, जो उरुभंगा ड्रामा है वो जो है वो स्टोरी है दुर्योधना की, जो कि भीम से जो उनकी लड़ाई हुई थी, द फाइट विद भीम ड्यूरिंग एंड आफ्टर हिज फाइट बताता है उरुभंगना में। अब आता है नेक्स्ट ड्रामा इज हर्षवंदना। ये जो है 3 संस्कृत प्लेस में लिखा गया है। दिस इज रूट्स ऑन 3 संस्कृत प्लेस। ओके, so it tells about Ratnavali. So it is the love story of Princess Ratnavali and the daughter of the king of Ceylon and King Udhyana. Okay, so it mentioned the celebration of Holi for the first time. इसमें जो है रत्नावली में ये बताया गया कि होली जो थी फर्स्ट टाइम कैसे खेली गई थी, और ये लव स्टोरी है प्रिंसेस रत्नावली की। अब इसी के अंतर्गत में आता है नागंदा, जो कि प्रिंस जिमुतवना की स्टोरी के बारे में बताता है कि that how he given his own body to stop a sacrifice of serpents to divine Garuda. So एक यूनिक कैरेक्टर है इस ड्रामा में, जो कि इनोवेशन टू लॉर्ड बुद्धा इन द नंदी वर्स। नाउ नेक्स्ट इज प्रियदर्शिका, जो कि एक यूनियन है उद्याना और प्रियदर्शिका का। ओके, हु इज द डॉटर ऑफ किंग दृढ़वर्णम। अब आती है संस्कृत पोएट्री। इसमें हरिसेना, जो कि गुप्ता पीरियड में था। ओके, he wrote the poems in praise of Samudragupta that is inscribed on Allahabad pillar. जो हरिसेना है वो गुप्ता पीरियड के पोएट थे। ओके, तो उन्होंने एक पोयम लिखी जो कि समुद्रगुप्ता के ऊपर थी, जो कि इलाहाबाद पिलर पे लिखी है आज भी। ओके, अब आता है जयादेवा, जिन्होंने गीता गोविंदा लिखी, हु रोट द गीता गोविंदा इन 12th सेंचुरी, विच कंसंट्रेट, जो कि लाइफ एंड एस्केप्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा के बारे में है। और कौन से एलिमेंट्स कंबाइंड है? दैट इज द डिवोशन टू लॉर्ड कृष्णा एंड हिज लव फॉर राधा एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर। सो अदर मेजर पोएट्स भी कौन कौन से हैं? जैसे भारवी, उनका वर्क क्या है? भारवी इज इन 550 AD, दैट इज Kirtajuniam, that is Kirat and Arjun. And the next poet is Magha, 65 to 700 AD. The work is Shishupalvadha, that is a killing of Shishupal. आप कुछ अदर मेजर संस्कृत टेक्स्ट भी हैं, जैसे 500 एंड 200 BC, जो कि बुक्स ऑन लॉ है, जिसे धर्मसूत्र कहा गया है, जिसे रिटन एंड कंपाइल 500 एंड 200 BC में करा गया था। That is a book on law which is known as Dharma Sutra, that is written and compiled between 500 and 200 BC. So इसकी जो कंपाइलेशन हुई है वो alongside स्मृतिज की भी हुई है, that are also known as धर्मशास्त्र। ओके, जो स्मृतिज है बुक की उसे धर्मशास्त्र कहा गया है। सो ये जो बेसिकली है लॉ दैट इज गवर्निंग सब्जेक्ट ऑफ मोस्ट हिंदू किंगडम। ओके, so it tells about the rules on holding, selling and transferring the property and punishment for offenses for like fraud and murder. Now is Manusmriti, that is laws of Manu. Okay, मनुस्मृति जो है वो मनु के लॉस के बारे में बताता है, कानूनों के बारे में बताता है, जो कि मनु के द्वारा दिए गए थे। This is like in 200 BC and 200 AD. So this defines the role of men and women in a society, which is written and given by a Manu, who is an ancestor of a mankind. अब कुछ मेजर संस्कृत टेक्स्ट और भी हैं, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मौर्यन पीरियड का। सो इट
concentrates on economic and social condition and military strategy. Kautilya or Vishnu Gupta or Chanakya, he is a scholar in Chandragupta's court. Okay. Now Sanskrit in Gupta period, so it has become more important language of for communication between culture and educated people. जो संस्कृत थी वो गुप्ता पीरियड में उसको काफी इंपॉर्टेंस मिली. ओके जैसे कम्युनिकेशन जो था वो कल्चर और एजुकेटेड पीपल के बीच में ज्यादा होता गया. अब लेटर कुशाना पीरियड, इसमें जो संस्कृत स्कॉलर थे उनको और महत्वता मिली और इंपॉर्टेंस मिली. जैसे अश्वघोषा ने बुद्ध चरित्र लिखी जो कि बायोग्राफी थी बुद्धा की, और शॉन राधना, ओके दैट इज अ पोएम. अब कुछ साइंटिफिक टेक्स्ट भी हैं इस पीरियड के. जैसे टेक्स्ट कौन से हैं? चरक बुक. क्या है? चरक संहिता. ये बुक जिस पे है मेडिसिन पे है. ओके अब आता है सुश्रुता, दैट इज सुश्रुता संहिता, दैट इज ऑन अ बुक ऑन सर्जरी. माधवा, दैट इज माधवा निंदाना, that is book on pathology. Varmeha, that is Panch Siddhantika, this is book on astrology. Varamira, that is in Brihat Samhita, that is book on wide subject, various subjects like planetary movements, geology and architecture. आर्यभट्टा जो थी वो आर्यभट्टिया बुक थी जो कि एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स पे थी. अब जो टेक्स्ट था लागाचार्य जो कि एस्ट्रोलॉजी पे था. ओके जो बुक एस्ट्रोलॉजी पे थी. अब आता है पिंगला जो कि बुक मैथमेटिक्स पर है. भास्करा जो कि सिद्धांता शिरोमणि बुक थी. ओके अब मेडिवल पीरियड में जो संस्कृत लिटरेचर थी उसको काफी इंपॉर्टेंस नहीं मिली, बट उसके काफी एक्सीलेंट वर्क थे, काफी अच्छे वर्क्स थे जो कि कंपोज किए गए राजस्थान और कश्मीर में. अब कश्मीर का कलहंस राजतरानी जो कि डिटेल अकाउंट ऑफ किंग्स ऑफ कश्मीर एंड सोमदेवास के बारे में है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वुमेन पोएट्स ऑफ भक्ति मूवमेंट. द फर्स्ट पोएटेस इज लाल देव. शी इज बिटवीन 1320 to 1384. She was the Muslim poetess from where Kashmir Ladet and Haba Khatun. She represented the same tradition of bhakti. और इन्होंने क्या लिखा? वर्क्स. शी रोट वर्क्स. सो जो कि काफी इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस देता है. अब नेक्स्ट पोएटेस कौन है? मीराबाई. शी इज इन बिटवीन 1500s. तो उन्होंने अपने वर्क किस किस लैंग्वेज में लिखे? शी रोट इन गुजराती, राजस्थानी एंड हिंदी. शी रोट सॉन्ग्स ऑफ कृष्णा in the voice of longing, expressing the pain of separation from the God she loved as a husband. मतलब जो इन्होंने सॉन्ग्स लिखे वो कौन से भगवान के लिए लिखे? फॉर द लॉर्ड कृष्णा, जिसमें उन्होंने अपना एक पेन एक्सप्रेस किया जो कि अलग होना उनका भगवान से था. वो लॉर्ड कृष्णा को अपना हस्बैंड मानती थी, अपना पति मानती थी. ओके Now the next poetess is Avyar. So she wrote the work in Tamil and Akhma Devi. So writing in Kannada also. She wrote about the position of women in society. इन्होंने वुमेन की सिचुएशन कैसी है सोसाइटी में इसके बारे में इनके वर्क थे. ओके द नेक्स्ट पोएटेस इज जनाबाई. शी वॉज अ शूद्र फ्रॉम महाराष्ट्र. जो इनकी टीचिंग थी वो काफी इन्फ्लुएंस थी सेंट नामदेव से. ओके सो इनकी पोएट्री जो थी वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करना वुमेन एंड शूद्रास. जो ये इनका फोकस क्या था, मेन थीम क्या था उनकी पोएट्रीज का, जो कि वुमेन जो है और शूद्रास जो है वो जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं उसके बारे में लिखती थी. सो दिस अवेकन द शूद्रास एंड वुमेन फॉर देयर राइट्स. तो ये इनकी जो पोइट्री थी वो उन काफी अवेयर की शूद्रास को और वुमेन्स को उनके राइट्स के बारे में, उनके अधिकार क्या है उसके बारे में उन्होंने बताया अपनी पोइट्री के थ्रू. नाउ नेक्स्ट इज वाहिना. ओके शी वॉज ऑल्सो फ्रॉम महाराष्ट्र. ये भी महाराष्ट्र से थी और कृष्णा की डिवोटी थी, मतलब कृष्ण भगवान को मानती थी ये भी. और ये जो थी ये किसकी डिसिपल थी, मतलब किसके अंतर्गत ये थी? तो ये थी सेंट तुकाराम के अंतर्गत थी. ओके ये इनके गुरु थे सेंट तुकाराम. सो बट दूसरों के
तरह नहीं ये काम करती थी, तो शी नेवर लेफ्ट हर मैरिज बट डिवोटेड टू भक्ति अलॉन्ग विथ मैरिज। ये भक्ति इसके साथ तो जुड़ी रहती थी, बट इन्होंने अपनी मैरिज पे कोई इफेक्ट नहीं आने दिया अपनी भक्ति के कारण। अब नेक्स्ट पोएटेस है अंदल। सो ये जो थी अलवर से थी। ओके, सो ये काफी विष्णु भगवान को मानती थी। शी इज अ बिलोव्ड ऑफ विष्णु, सो शी एक्सप्रेस हर डिवोशनल लव फॉर दिस डीटी। ओके, इन्होंने काफी अपना डिवोशनल लव मतलब अपना प्यार, अपनी भक्ति जो है विष्णु के प्रति बहुत दिखाई। नाउ नेक्स्ट इज करिकल अमयार। ये 63 नायनार्स से, उसमें से 3 जो वुमेन नायनार्स थी उनमें से एक थी। ओके, 63 नायनार्स थी, बट इंपॉर्टेंट जो थी वो 3 वुमेन्स थी। उनमें से एक जो थी वो नायनार्स में से एक थी, ये करिकल अमयार। ओके, अब ये जो थी ये शिव की काफी अच्छी भक्त थी। शी इज अ डिवोटी ऑफ शिवा, सो शी अडॉप्टेड द पार्ट ऑफ asceticism, means to order or to attain her goal towards शिवा। अब आता है मॉडर्न लिटरेचर। सो मॉडर्न लिटरेचर मीन्स आधुनिक काल। ओके, इसमें जो हिंदी थी वो काफी इंपॉर्टेंट या फिर मेजर लैंग्वेज थी नॉर्थ इंडिया की, और अदर लैंग्वेजेस जैसे बंगाली मेड देयर रिमार्क। ओके, जैसे हिंदी, पहला हम लेते हैं मॉडर्न लिटरेचर में हिंदी लैंग्वेज। सो जो हिंदी थी वो काफी इंपॉर्टेंट राइटिंग के लिए यूज हुई। जैसे चेंज जो हुआ ब्रिटिश के बाद हुआ, आफ्टर कमिंग ब्रिटिश। ओके, सो भारतेंदु हरिश्चंद्र, सो दिस इज द फेमस ड्रामा। एक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक ड्रामा लिखा जो कि अंधेरी नगरी मीन्स द सिटी ऑफ डार्कनेस, जो कि 1850 में लिखा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट या फिर मेजर प्ले बना और काफी समय तक रिप्रोड्यूस फॉर अ सेवरल टाइम। ओके, अब मेजर वर्क क्या था? भारत दूरदशा। मेजर राइटर क्या थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। सो इनका जो इंटायर फेज था हिंदी राइटिंग के नाम पर गया। ही रोट द इंटायर फेज इन हिंदी लैंग्वेज ओनली। अब मॉडर्न लिटरेचर के भी जो आधुनिक काल है उसके भी 4 सबसेक्शंस हैं हिंदी में। ओके, जैसे भारतेंदु युग जो कि 1868 से 1893 तक था, द्विवेदी युग जो कि 1893 से लेके 1918 तक था, छव्याद युग दैट इज 1918 टू 1937, कंटेम्प्रेरी पीरियड जो कि 1937 से लेके अभी के वक्त तक है, दैट इज फ्रॉम टिल present also it is there, contemporary period. So it make movement to make Hindi national language. There are some movements for making Hindi as a national language, that is spreaded by Swami Dayanand who wrote a lot in Gujarati. Swami Dayanand के काफी जो वर्क हैं वो गुजराती में हैं। ओके, सो उनका one of the most famous जो वर्क है हिंदी में that is सत्यर्थ प्रकाश। ओके, so some of the Hindi authors are Munshi Premchand, Suryakant Tripathi is also known as Nirala, Maithili Sharan Gupta questioned orthodoxies in the society. So प्रेमचंद्र जो थे वो हिंदी में लिखते थे, उर्दू में लिखते थे। उनके फेमस वर्क हैं जैसे गोदान, बड़े भैया एसेट्रा। सो प्रोमिनेंट राइटर्स कौन कौन से हैं? सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की कौन सी पोएम काफी फेमस है? दैट इज मधुशाला। सो मोस्ट फेमस फीमेल हिंदी राइटर्स भी आई 20th सेंचुरी में, जैसे महादेवी वर्मा। शी वॉज अ रिसीव द पद्म विभूषण ऑल्सो फॉर राइटिंग द कंडीशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। अब मॉडर्न लिटरेचर में बंगाली, ओडिया एंड आसामसी लिटरेचर भी थे। ओके, जैसे 20th सेंचुरी में बंगाली लिटरेचर जो कि उर्दू और हिंदी के साथ काफी डेवलप हुआ। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इस लिटरेचर का जो कि फैसिलिटेट किसके द्वारा हुआ? किसके द्वारा मेन फोकस हुआ? जैसे बैप्टिस्ट मिशन प्रेस जो कि सिरमपुर बंगाल में एस्टैब्लिश है, किसके द्वारा किया गया था? इंग्लिश मैन विलियम कैरी इन द ईयर 1800। सो मंगल काव्यास हु इज द एशियन बंगाली लिटरेचर। ये एक मंगल काव्य जो है वो एक बंगाली लिटरेचर है जो कि 19th सेंचुरी में लिखी गई। ओके, पर पहले लिखी गई थी 19th सेंचुरी के, बट
अभी तक ये पब्लिश नहीं हुई है, बट ये वाइडली पब्लिश नहीं हुई है, हुई तो होगी लेकिन ये वाइडली पब्लिश नहीं है. Okay, so nationalist favor done Bengal literature to common man suffering and nation's plight. So Raja Ram Mohan Rai, you have listened this name also. So he wrote in Bengali and English. So his contemporaries are Ishwar Chand Vidyasagar and Akshay Kumar Datta. So Bankim Chandra Chatterjee, who is in Bengali literature also, and he wrote Anand Mat, okay, where वंदे मातरम इज टेकन. जो वंदे मातरम हमारा है वो आनंद मठ से लिया गया है और बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है. ओके, सो फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज, दैट इज बंगाली रविन्द्रनाथ टैगोर. ओके, फॉर द masterpiece Gitanjali in 1930. So UPSC can ask you a question that first Indian to win Nobel Prize, then you have to take on Rabindranath Tagore. नाउ बंगाली एंड उड़िया और आसामसी लिटरेचर में और भी कंट्रीब्यूटर्स थे, जैसे शरण चंद्र चटर्जी, काजी नजरुल इल्साम एंड आर.सी. दत्ता. मेडिवल पीरियड आसामसी लिटरेचर में काफ़ी डोमिनेटेड था किसके द्वारा? बुरंजीज, जो हु आर कोर्ट क्रॉनिकल्स. सो शंकर देव, हु इज एन डिवोशनल पोएट्री विच इज इन आसामसी. जो शंकर देव थी वो काफी डिवोशनल पोएट्री थी जो कि किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? आसाम में. ओके, आसामसी में. सो इट इज एन मॉडर्न आसामसी लिटरेचर, जो कि टू मेजर स्कॉलर्स कौन से थे आसामसी लिटरेचर के? जैसे पद्मनंबा गोहेन बरुआ एंड लक्ष्मीनाथ बिजबड़ा. ओके, बिजौरा. सो ईस्ट ऑफ इंडिया में काफी उड़िया लिटरेचर आई, जैसे फर्स्ट वर्क किसका था? सरला दास का था. मेडिवल पीरियड में आउटस्टैंडिंग राइटर कौन से थे 1700 में जो लिखने लिखा था? उपेंद्र भंजा. ओके, सो मॉडर्न पीरियड के राधानाथ राय एंड फकीर मोहन सेनापति. अब आता है गुजराती, राजस्थानी, सिंधी लिटरेचर. ये भक्ति मूवमेंट में थी. ओके, जैसे जिसे में गुजरात को काफी पीक मिली लिटरेचर के में. सो नरसिम्हा मेहता, so he wrote and songs for devotional songs for Krishna with local folk tradition. So later after this period there was a poetry by Narmad also, and prose were given by Govardhan Ram, who wrote classical Gujarati novel also, Saraswati Chandra. ओके, गुजराती लिटरेचर के जैसे कौन कौन से मेन लोग थे? जैसे के.एम. मुंशी, ही रोड इन फिक्शन एंड नॉन फिक्शन ऑल्सो. सो हिज फाइनेस्ट नॉवल इज पृथ्वी वल्लभा. ओके, मेडिवल राजस्थानी लिटरेचर के दो फॉर्म है फिक्शनल राइटिंग के, जो कि कहे जाते हैं दिंगल एंड पिंगल. मोस्ट फेमस टेक्स्ट कौन से है? धोला मारू, विच इज राइटिंग्स ऑफ मीराबाई इन ब्रज. ओके, धोला मारू जो है वो मीराबाई ब्रज के इन ब्रज में लिखा गया है, ब्रज लैंग्वेज में लिखा गया है मीराबाई द्वारा. सो सेंट्स कंपोज डिवोशनल पोएट्री. सो स्टोरीज ऑफ राजस्थानी राइटर्स आर ओरल इन नेचर. वो जो राजस्थान राइटर्स थे उनकी जो स्टोरीज होती थी शब्दों में होती थी, ओरल होती थी काफी. सो कि बार्ड्स जो कि हु सैंग वीर काव्य. ओके, मतलब वीरों की कहानी या फिर वीर काव्य, विक्ट्री पोएटिक सॉन्ग्स होते थे. अब आता है सिंधी लिटरेचर, जो कि इन्फ्लुएंस हुआ दो रीजन्स में, राजस्थान और गुजरात में, जो कि इन्फ्लुएंस करता है इस्लाम और सूफिज्म को इन सिंधी पोएट्री, बिकॉज सिंध वाज ऑन अ बॉर्डर ऑफ इंडिया. ओके, सो पोएट्री जो होती थी काफी लिरिक्स के साथ भी होती थी और उसे काफी अच्छे तरीके से गाया जाता था. दैट इज वेरी लिरिकल एंड इट्स संग. सो मोस्ट प्रोमिनेंट नेम्स ऑफ सिंधी लिटरेचर आर देवान कुरमल एंड मिर्जा कैलाश बेग. नाउ कम द कश्मीरी लिटरेचर. ओके, सो जो अर्लीस्ट टेक्स्ट है फ्रॉम कश्मीर का वो है कलहांस रजत तरंगनी. ओके, इन विच इज इन संस्कृत. सो जो लोकल पीपल थे कश्मीर के वो इसे यूज करते थे, जो कि इन्फ्लुएंस किससे था? पर्शियन और हिंदी लैंग्वेज से. सो अर्ली मेडिकल पीरियड जो कि भक्ति मूवमेंट को काफी पीक पे ले गया. जैसे जो फर्स्ट फीमेल कश्मीरी पोएटेस थी वो लाल देद थी. ओके, आफ्टर कमिंग ऑफ इस्लाम एंड सूफिज्म टू कश्मीर, जब इस्लाम और सूफिज्म कश्मीर में आया तब मेजर राइटर्स कौन कौन से थे?
कौन से थे सूफी गुलाम मोहम्मद, जिंदा कौल मंजूर. ओके, they are emerging at that time. So Nuruddin, also known as Nand Rishi, so he bring Hindi and Islamic elements together in his poetry. वो हिंदी और इस्लामिक एलिमेंट्स को अपनी पोएट्रीज में लाते थे. सो पॉलिटिकल पावर जो था डोगरा फैमिली का जम्मू में 1846 में, उसमें कश्मीरी जो थे एक्लिप्स्ड हो गए, ओके, बाय डोगरी लैंग्वेज. ओके, कश्मीरी को डोगरी लैंग्वेज में भी कंबाइन किया गया. अब आता है पंजाबी लिटरेचर. ओके, जो कि रीजनल एंड ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस करता है पंजाबी लिटरेचर को. ओके, अब इसके दो मेजर स्क्रिप्ट कौन से हैं, पर्शियन एंड गुरमुखी. और जो इसके मेजॉरिटी है आदि ग्रंथ, जो कि है आदि ग्रंथ जो है वो गुरमुखी में लिखा गया है, जो कंपाइज करता है दोहास ऑफ कबीर, दादू एंड नानक को, जो कि हिंदी या फिर ब्रज में लिखा गया है. जो गुरु गोबिंद सिंह हैं उनका कंट्रीब्यूशन क्या है आदि ग्रंथ में, हैड रिटन सव्यास, मतलब जो पोइट्री है पंजाबी की उसको लिखा है. ओके, अब लोकल लिटरेचर जो कि जैसे सोहिनी महिवाल, ससी पुन्नू, हीर रांझा बाय वारिश शाह. ओके, अब सूफी पोइट्री किसके द्वारा लिखी गई, जैसे बाबा फारिद एंड बुले शाह, उन्होंने एक कंपोज किया क्लासिकल कंपोजिशन जिसे काफीज कहते हैं और काफी पॉपुलर हुआ ये. अब मॉडर्न पंजाबी लिटरेचर जो कि नेशनलिस्टिक राइटिंग को काफी इफेक्ट करता है, और भगत सिंह की लेजेंडरी जो कि रंग दे बसंती चोला के बारे में भी लिखा है. ओके, अब जो एक ट्रेंड हुआ, जो पास्ट रूलर्स का एक जो ट्रेंड जो काफी यादगार रहा, रिमेंबर रहा, जो कि ब्रिटिश को हराने में, रिपल करने में, लाइक भाई वीर सिंह ने, उन्होंने लिखा राणा सूत्र सिंह. कंटेम्प्रेरी राइटर्स कौन से थे, डॉक्टर मोहन सिंह एंड पूरन सिंह. अब आते हैं मराठी लिटरेचर आती है लास्ट में, हम ये डिस्कस करते हैं मॉडर्न लिटरेचर में. दिस इज ऑल्सो लास्ट टॉपिक, मराठी लिटरेचर. ये एक ओल्डेस्ट नोन मराठी वर्क है 13th सेंचुरी का, जो कि सेंट जनेश्वर, जो कि उन्हें ज्ञानेश्वर भी कहा जाता है, वो बिगन हुआ कीर्तन से महाराष्ट्र में, और रोट इन डिटेल फॉर्म ऑन भागवत गीता इन मराठी. भागवत गीता जो है वो मराठी में भी लिखी गई, और पॉपुलर सेंट जैसे नामदेव, सेना एंड गोरा. ओके, ओल्डेस्ट फीमेल राइटर वॉज जनाबाई. सो मोस्ट फेमस सेंट फ्रॉम महाराष्ट्र जो 16th सेंचुरी में थे, एकनाथ. ओके, एकनाथ, उन्होंने लिखा कंटेम्प्रीज ऑन भगवत पुराना एंड रामायण. ओके, भागवत पुराना और रामायण पे लिखा, जो कि वर्निकुलर लैंग्वेज में है. ओके, नाउ तुकाराम एंड रामदास, these are two notable bhakti poets, but these was affected by the nationalistic movement. Now Bal Gangadhar Tilak also published newspaper known as Kesari in Marathi, which was criticized by, जो काफ़ी ब्रिटिश ने उसकी बुराई की, काफ़ी क्रिटिसाइज किया ब्रिटिशर्स ने उस पेपर का, केसरी का. सो एंड देयर पॉलिसीज. ओके, एंड मराठी राइटिंग जो थी उसका काफ़ी पॉजिटिव टर्न हुआ उनके वर्क्स में, विद वर्क्स ऑफ कौन कौन से वर्क्स में पॉजिटिव राइटिंग का टर्न हुआ, जो मराठी राइटिंग थी उसमें पॉजिटिव टर्न किस किस में मिला, जैसे हरि नारायण आप्टे की राइटिंग, चिपलुनकार एंड केशव सुत. कंटेम्प्रेरी पोएट कौन कौन से थे, एम.जी. रांडे, जी.टी. मधोलकर, के.टी. तेलांग. So these are some of the contemporary poets. So we have discussed all the topics. Okay, so hope you understood. Thank you.